So today in this code block software, I am going to implement the jump statement. So what are the jump statement? The first jump statement is go to, then the next jump statement is break, the next jump statement is continue, after that there is a exit function, then there is also one jump statement that is return. So today I am going to implement all this jump statement in program. So let's start with the first topic, that is go to. How to use go to? Suppose I am writing a program here, cout /n hi. After that I have written cout /n bye. So after this line I will write go to, then you have to specify the label. So go to, here I am specifying the label and. You can specify any other name. After specifying the label, then you have to use again that label, that is and colon go cout /n and. So I'm printing the message and. Now this is a go to, that is a jump statement. So when you execute this program, so you can see the output that it is showing the hi and end. It is not showing the bye. Why? Because when the compiler executing the instruction in a sequential manner, first it executed this line, this instruction, so it will print the message hi. After that, when the compiler execute this go to end statement, then it will jump to this label. So here the label is and I have used the label here. So it will jump to this location, that is end. After that there is a message, that is cout end. So it will skip this line. If you write any other instruction, suppose here you have written good. If you run this program, again the output will be hi and. So the go to statement jump from one location to another location. So you have to specify the label name. So this is a label name. Now here you have to specify the label name, and after that what you want to do. So here I have written सर that I want to print the end message. Yes, पूछो. सर अगर हम गो टू के बाद जो आपने एंड लिखा है उसकी जगह कुछ और लिखे हैं ये लो कुछ और, एंड की जगह मैं लास्ट लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी मुझे लेबल नेम वही रखना पड़ेगा लास्ट. अब मैं इसको रन करूं, अगेन द आउटपुट विल बी हाई एंड. लेबल नेम कुछ भी हो सकता है, लेबल नेम जरूरी नहीं है कि एंड ही हो. तो यहाँ से वो जंप करेगा ओके सर यहाँ पर. तो उसके बाद यहाँ जो भी इंस्ट्रक्शन आपने नीचे लिखी हो, जैसे मान लो ये एंड है, इसके नीचे जो भी आपने लिखा हो cout /n वेरी गुड, और मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, then you can see that hi and very good. तो इसका मतलब
ये जो बीच वाला पार्ट है गो टू से लेकर और जो ये लेबल है इसका बीच वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा. सो इट विल डायरेक्टली जंप टू दिस लेबल. क्लियर? सो दिस इज a go to statement. So the syntax for the go to statement is that you have to first mention the go to keyword. This is a keyword. After that you have to mention the label. Label means it is a user defined, कुछ भी यूजर डिफाइन कर सकता है. उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना, जैसे यहाँ पर सेमीकोलन लगाया. उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो लेबल है, so here you have to use label name and colon. So you can write here any instruction. Between this you can write here any instruction. So this is a syntax for the go to statement. That is go to label. उसके बाद बीच में जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो वो, और उसके बाद आपके पास आएगा लेबल नेम और उसके बाद कूलन और उसके बाद आगे जो भी आप इंस्ट्रक्शन प्रिंट करना चाहते हो. लेबल के बाद कितने भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, एक लाइन का या 2 लाइन का. सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द गो टू स्टेटमेंट. पर कहते हैं कि गो टू स्टेटमेंट यूज नहीं करना चाहिए C++ में ज्यादातर, क्योंकि ये बार बार जंप करता है. प्रोग्राम कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, फिर ये ऊपर भी जा सकता है, फिर कहीं और भी जा सकता है. तो इससे क्या होगा, प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ जाती है बार बार. तो इसलिए हमें कम यूज करना चाहिए. उसकी जगह आप ब्रेक स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हो. नाउ हाउ टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट? सर हाँ पूछो. सर मोर देन वन गो टू स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड. हाँ कर सकते हो आप. गो टू यहाँ पर लेबल है, उसके बाद आप फिर से यूज कर लो, गो टू एंड कर लो या गो टू लास्ट कर लो. जैसे फॉर लूप आप बार बार यूज कर सकते हो, वैसे आप गो टू भी यूज कर सकते हो. तो उससे क्या होगा, जंप हो जाएगा प्रोग्राम में. अभी आपने पहला इंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ से जंप करेगा, फिर आप दोबारा फिर से गो टू देंगे, फिर वो दूसरी जगह जंप करेगा, तो ये जंपिंग होती रहेगी. ब्रेक. नाउ व्हाट इज ए ब्रेक? हम ब्रेक क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों यूज करते हैं? ब्रेक का मतलब ये हो गया, जैसे आपने लूप में कोई प्रोग्राम बनाया और वो लूपिंग चल रहा है, बार बार चल रहा है. कहीं एक कंडीशन में वो सेटिस्फाई कर रहा है और आप चाहते हैं कि वहां के बाद वो ब्रेक हो जाए, यानी एक पर्टिकुलर लूप से वो बाहर आ जाए, आगे लूप ना चले. ठीक है? या फिर आप इसको स्विच केस में भी यूज कर सकते हो. सपोज मैं यहाँ प्रोग्राम बना रहा हूं फॉर int. This is a declaration that is int equal to 1, that is initialization of the variable. After that x less than equal to 10. After that I am incrementing the value of x, that is updation. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, if कंडीशन लगा दिया कि if x equal to 5 हो जाए. जैसे x equal to 5 हो जाए तो वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए. ब्रेक क्या मतलब, इस लूप से बाहर आ जाए. इस लूप से बाहर मतलब यहां से इसके बाहर आ जाए. ठीक है? उसके बाद आप यहां पर एक मैसेज प्रिंट कर सकते हो, सी आउट, जो आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो. सपोज करो मैं यहां पर वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं एक्स की, तो x इक्वल टू एक्स. तो जब ये एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम, तो पहले ये लूप आएगा, यहाँ पर x की इनिशियल वैल्यू 1 है, फिर x लेस देन 10 है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड, 1 इज लेस देन 10, यस. फिर उसके बाद यहाँ इनर, ये बॉडी है फॉर लूप का. तो उसके बाद कंडीशन क्या है, इफ x इक्वल टू 5, लेकिन x की इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है. तो यहाँ इफ बॉडी पार्ट ये एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं. एग्जीक्यूट क्या करेगा ये, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या शो करेगा, 1. फिर उसके बाद x की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी. 2 लेस देन 10, यस. फिर उसके बाद 2 इज इक्वल टू 5, नॉट. फिर अगेन x की वैल्यू 3, 4. जैसे ही x की वैल्यू 5 हो जाएगी, इन दैट केस इट विल ब्रेक. तो जब आप इसको रन करोगे तो ये देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, 1, 2, 3, 4. तो ये क्या कर रहा है, लूप से बाहर आ रहा है. एक हमने डिस्कस किया था रिटर्न प्रोग्राम, सॉरी रिटर्न कीवर्ड, वो मैं अभी बताऊंगा आपको कि वो क्या काम करता है. तो ये ब्रेक क्या कर रहा है, इस लूप से बाहर आ रहा है. ये फॉर लूप है ना, फॉर लूप की ये जो बॉडी है
ओपन, यहाँ से ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है, इससे बाहर आ रहा है, प्रोग्राम से बाहर नहीं आ रहा है। अब मान लो मैंने ये ब्रेक को क्या किया, कमेंट बना दिया कि मुझे ब्रेक करना ही नहीं है। अगर मैं इसको बिल्ड करता हूं तो इस केस में क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी वैल्यू दिखा रहा है। पर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो जाए, मुझे इस लूप से बाहर आना है। प्रोग्राम से बाहर नहीं बोल रहा हूं मैं, लूप से बाहर आने की बात कर रहा हूं। तो लूप से बाहर आते कहां पर आएगा, प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा। इसके बाद अगर आप चाहे तो यहां पर एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो, सी आउट। यहां पर आपने मैसेज प्रिंट कर दिया एंड, और ये ब्रेक में लगे रहने देता हूं यहां पर। उसके बाद बिल्ड करो। तो जैसे आपने इसको एग्जीक्यूट किया, आपके स्क्रीन में क्या मैसेज आ रहा है, 1 2 3 4 5 जैसे आ गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक का मतलब उस फॉर लूप से बाहर आया। जैसे फॉर लूप से बाहर आया तो अगला मैसेज क्या है, एंड है। एंड क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, इस फॉर लूप से बाहर आया, उसके बाद ये अगला मैसेज क्या है, अगला इंस्ट्रक्शन क्या है, वो है एंड। ठीक है, तो दिस इज ए ब्रेक स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप, and the program is controlled here, and following this all the statement after the for loop will be executed. So this is a go to. There is a one more keyword in jump statement, that is continue. कंटिन्यू क्या करेगा, सपोज करो मैंने यहां पर क्या किया, कंटिन्यू लिखा। अब कंटिन्यू क्या करेगा, इसको स्किप करेगा। स्किप करने का मतलब, जैसे मैंने बिल्ड किया और रन करता हूं तो आप देखो यहां पर क्या आया, 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है, कंटिन्यू कीवर्ड का मतलब ये है कि जैसे x इक्वल टू 5 आ जाए तो यहां पर नहीं आएगा, इस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कंटिन्यू का मतलब है कि जैसे कंटिन्यू कीवर्ड आ जाए वापस ऊपर चला जाए यहां पर। फिर x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू पहले 4 थी, फिर 5 थी, 5 के बाद क्या होगी, 6 होगी, फिर 6 इज लेस देन 10। फिर यहां पर चेक किया कि x की वैल्यू क्या, 5 तो नहीं है, पर x की वैल्यू तो 6 है। तो ये क्या करेगा, इसको स्किप कर देगा, उसके बाद ये लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो जैसे x की वैल्यू 5 होती है तो वो क्या करता है, प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करता है कहां पर, स्टार्टिंग ऑफ द लूप, यहां पर। तो यहां पर लूप के स्टार्टिंग में वो क्या करेगा, प्रोग्राम कंट्रोल को ट्रांसफर करेगा। लेकिन ब्रेक के केस में क्या होता था, जैसे हम ब्रेक लिखते थे तो वो क्या करता था, प्रोग्राम कंट्रोल को कहां ट्रांसफर करता था, यहां पर। वो प्रोग्राम कंट्रोल को क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है, कहां से, लूप से। कंटिन्यू के केस में ये क्या कर रहा है, लूप को एग्जिट नहीं कर रहा है, लूप को रिज्यूम कर रहा है, मतलब फिर से यहां से स्टार्ट कर रहा है। जो x की नई वैल्यू है, यहां पर 5 था, अब x की वैल्यू 6 होगी, तो अब यहां से चेक होगा। ठीक है, अगर एक और है कीवर्ड, दैट इज एग्जिट। अगर मैं यहां एग्जिट लिखता हूं, एग्जिट 0, 0 का मतलब होता है सक्सेसफुल टर्मिनेशन। अगर आप कोई नन 0 नंबर वैल्यू आप एंटर करते हो, दैट इज अनसक्सेसफुल टर्मिनेशन। तो अब मैंने क्या किया, एग्जिट कर दिया, तो अब ये जो आपका एंड है, अब देखो मैं इसको क्या करता हूं, रन करता हूं। तो अब देखो यहां पर मैसेज आप देख पा रहे हैं, एंड नहीं देख पा रहे। ब्रेक के केस में क्या हो रहा था, वो लूप से एग्जिट हो रहा था, तो इसीलिए वो प्रोग्राम कंट्रोल यहां आ रहा था, फिर ये इसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था। कंटिन्यू के केस में क्या हो रहा था, वो इस जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, x इक्वल टू 5, तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट, जो भी इंस्ट्रक्शन था, उसको वो क्या कर रहा था, स्किप कर रहा था। और जो लूपिंग है वो स्टार्ट हो रही थी, अगेन लूपिंग वॉज स्टार्ट। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जैसे लूप कंडीशन फॉल्स होगी, जैसे x की वैल्यू 11 आ गई, 11 लेस देन 10, द कंडीशन इज फॉल्स। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल आया यहां पर और ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया। लेकिन एग्जिट के केस में यहां कंट्रोल आ नहीं रहा, बल्कि सीधा प्रोग्राम से एग्जिट हो जा रहा है। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यू, ब्रेक एंड एग्जिट। अब हम बात करते हैं एक रिटर्न स्टेटमेंट है, उसको हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर क्या एक फंक्शन बनाया है, इंट सम, उसके बाद मैंने 2 पैरामीटर इंट इंट, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही लिखना है। और यहाँ पर मैंने कर दिया इंट x इक्वल टू 1
int y equal to 2 3 और int z. नाउ z इक्वल टू सम नाम के एक फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पर पैरामीटर मैंने पास किया x, y और उसके बाद सेमीकोलन. उसके बाद मैंने मैसेज प्रिंट किया सी आउट z इक्वल टू z. ठीक है, और रिटर्न 0. जैसे रिटर्न 0 आ गया, इट मीन्स दिस मेन फंक्शन रिटर्न 0 मीन्स सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन. उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा. कौन सा? सम नाम का. इंट सम, यहाँ पर वेरिएबल ले लिया इंट a इंट b. ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है. उसके बाद इंट s इक्वल टू a प्लस b सेमीकोलन देन रिटर्न s. अब ये जो रिटर्न हम यूज कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है, ये z नाम के एक वेरिएबल है दैट इज इक्वल टू सम. तो ये क्या करेगा, इस सम नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है. सो दिस इज ए कॉलिंग एनवायरनमेंट, दिस इज ए फंक्शन कॉल. दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन कॉलिंग. तो फंक्शन कॉलिंग किसने किया है? ये z वेरिएबल ने. जैसे फंक्शन कॉलिंग हुआ तो ये जो पैरामीटर है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, ये यहाँ पर पास हो जाएगी a और b में. अब a की वैल्यू क्या 1 है, b की वैल्यू क्या 3 है, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब 4 हो जाएगी. अब इस फंक्शन ने क्या किया, रिटर्न s. रिटर्न s का मतलब है इट विल रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन टू द कॉलिंग फंक्शन. कॉलिंग फंक्शन कौन सा है, ये है. तो ये इस फंक्शन को कॉल किया था. जैसे इस फंक्शन को कॉल किया गया तो इस फंक्शन ने क्या किया, पैरामीटर रिसीव किया. a की वैल्यू रिसीव हुई x से और b की वैल्यू रिसीव हुई y से. दोनों का सम किया और रिटर्न s करके, दोनों का सम करके रिटर्न कर दिया s की वैल्यू को. किसको, कॉलिंग फंक्शन को. तो अब z की वैल्यू कितनी होगी, 4, और z की वैल्यू यहां पर मैंने क्या किया, प्रिंट किया. तो इसका मतलब क्या है, व्हेन यू यूज रिटर्न स्टेटमेंट it will return the value to the calling function. ठीक है, और when you use the return function in main function, it means it will return the control to the operating system. तो आप इसको बिल्ड करो. तो देखो z की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आ गई. तो इसका मतलब, अब आप पूछ रहे होंगे कि सर रिटर्न फिर एग्जिट में क्या फर्क हो गया. देखो, जब आप एग्जिट यूज करते हो प्रोग्राम बीच में, तो इसका मतलब है प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. सिमिलरली अगर आप रिटर्न किसी और फंक्शन में यूज करते हो तो प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, उस केस में फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है. तो जब आपने यहाँ पर रिटर्न एस किया तो ये फंक्शन टर्मिनेट हुआ, ना कि पूरा प्रोग्राम. अगर पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट होता तो आपको ये जेड की वैल्यू दिखती ही नहीं. तो इसलिए ये फर्क है एग्जिट और रिटर्न स्टेटमेंट में. So that's all for today. So I hope you have understood how to use the jumping statement. The first that we have discussed, that is go to. After that we discuss about break, then we discuss about continue, then we discuss about exit, and then we discuss about return and how to use them in program. So thank you.